Hello everyone. Very good afternoon to all of you. Welcome to this session. I hope you people are doing great. Please let me know if I'm properly audible and visible to all of you. It's a very important session that you have here today. We are going to cover 10 grammar rules. These are super important and you cannot do without them. You should know them for doing well in exam. Okay, so quickly एक बार मुझे बताओ if मेरी आवाज और वीडियो proper है या Till then, I'll simply introduce myself. Those who don't know me, I am Niharika John Mehra, your faculty of English here. और आपको मेरे बहुत सारे sessions मिलेंगे under our courses that are available on our website and on our app. Do check out the description box for more details. Also, like and share the session right now. Let's have more people here. और अगर आप new हो तो subscribe जरूर कर लें. Okay? It would be great if I can get a confirmation here. I'll wait for a minute for more people to join. So, talking about grammar. Now, first of all, I know many people, many students who are not that interested in grammar. Again, it is very important. You cannot plan to prepare for English subject for any of the exam without considering you know this part well or not. आपको ग्रामर आनी चाहिए. ग्रामर समझनी होती, ग्रामर को सीखना पड़ता है. येस वी अंडरस्टैंड थिंग्स लेटर. रूल कैसे लगा, कहाँ लगा, इस टाइप से क्यों लगा, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, है ना. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्टार्टिंग में ड्रॉप कर देते हैं. दे थिंक ओनली रीडिंग इज इनफ फॉर देम टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज नॉट ट्रू. रीडिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है ग्रामर. सो यू मस्ट नो वेरी वेल कि ग्रामर में क्या चीज़ें कैसे काम करती है. ओके, सो डोंट थिंक दिस इज ओनली फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस करेक्शन एंड विदाउट दिस okay we will just skip a few question बाकी तो कर लेंगे. Of course it is important for your objective question, it is important for your descriptive questions as well. Descriptive, when you have to write an essay, a phrase, your grammar is checked. और ये जो होती है digitally check होती है, so you can understand there is no room for you to make mistake if you want perfect score or a good score. तो हम मिनिमम मिस्टेक्स करें या ना के बराबर करें, फॉर दैट वंस आपका फाउंडेशन क्लियर होना ज़रूरी है. तो इफ़ यू आर समवन जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं है, अपना फाउंडेशन पे बेट करो. यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एज ऑफ नाउ. सो प्लीज़ प्रिपेयर ग्रामर, द थियोरी पार्ट, एंड वंस इट इज़ डन, उसके बाद में यू कैन गो अहेड एंड अलॉन्ग विद प्रैक्टिस आप ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो. Okay, but the main push here or the message here to all of you is that please do not skip this thing. Don't think कि ये important नहीं है, ये बहुत ज़्यादा important है, ये equally important है. Okay, so that's there. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Let's begin with the first rule. First is subject verb agreement. Okay, किसी भी सेंटेंस में, and if it is a positive or a negative sentence, before verb you get a subject. Okay, if it is active voice, अगर ये active voice है तो subject जो है वो doer होगा, मतलब जो काम कर रहा है, जो करता है. if it is a passive voice, then verb इसके ऊपर action करता है. Okay, so there are two ways in which subject हमको मिलता है किसी भी केस में. It is super duper important for you to make sure कि आप जो हो verb को according to the subject use करो. In number, that means you should know आपका जो भी subject है वो singular है या plural है. In person, ये तब होता है जब आपके ज़्यादातर यूज होते हैं
प्रोनाउंस। ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हर एक अलग तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में सिंगुलर कैसा है, प्लूरल कैसा है, वो अलग तरीके से काम करता है। तो यू मस्ट नो, यू शुड हैव गुड नॉलेज पहले तो कि सब्जेक्ट होता कैसे है। ये ना दो तरीके से काम करेगा लर्नर्स। फर्स्ट इज कि आप सब्जेक्ट को स्पॉट करना सीखो। समटाइम्स आपको रूल पता होगा लेकिन आप यहीं गड़बड़ कर दोगे कि सब्जेक्ट है क्या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में। तो आपको स्पॉट करते आना चाहिए सब्जेक्ट को, एज वेल एज वर्ब कौन सा लगा है किसके लिए, तो दोनों को स्पॉट करेंगे, देन यू कैन अप्लाई द रूल। सो सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल टेक प्लूरल वर्ब्स। देर आर सर्टेन वर्ड्स जो कि होते हैं प्रोनाउंस, जिसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। each, everyone, anyone, बड़ी वाले words, one वाले words, thing, everything, anything, these are always singular, तो इनके verbs भी accordingly singular होते हैं। हमेशा जब आप and से जुड़ा हुआ subjects पाएंगे आप plural verb का use करोगे। okay, so the list of the books is on the table। आपका पहला नाउन है सब्जेक्ट में लिस्ट, सेंटेंस का फर्स्ट नाउन है लिस्ट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज लगा हुआ है। सेकंड, आपको जैसे बताया ईच, एवरी, ये कभी भी सब्जेक्ट में आएंगे तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ईच ऑफ अपने साथ नाउन तो प्लूरल लेगा लेकिन इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। देन देर इज समथिंग जो एंड का एक एक्सेप्शन है। समटाइम्स हम एंड का यूज करेंगे लेकिन उसका जो भी आसपास वाले सिंगुलर नाउन्स होंगे वो मिलकर एक आइडिया, वन आइडिया बता रहे होंगे, सिंगल एंटाइटी है। राइस एंड करी अलग अलग नहीं खाया जा रहा है, मिक्स करके खाया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज वन आइडिया, सिंगल एंटाइटी। एंड my brother and sister different entity, different subjects, that's why यहाँ पे आ रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज लाइक अ चीट शीट फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि इंपॉर्टेंट रूल्स है टू रिमाइंड यू कि देखो आपको ये पर्टिकुलर चीज पता है या नहीं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। ओके, सेकेंड वन में टेंसेस की कंसिस्टेंसी। हमारे पास प्रेजेंट में 4 टेंस हैं एक्टिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर में भी 4 हैं। सो यू मस्ट नो कि कब कौन सा टेंस यूज होना चाहिए। ऑल्सो वी डू नॉट मिक्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस इनकरेक्टली। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे अगर आधा सेंटेंस पास्ट में है तो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द पास्ट। ओके, ऑल्सो व्हाट डू यू गेट टू सी हियर इज कि यहाँ पे आपके पास में कई बार कुछ फैक्ट्स होते हैं, ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, है ना। तो ये जो है ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, आई होप यू नो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे कॉम्बिनेशन, तो ये उसमें जाता है ना। मेन इज टेंस को चेक करना, फैक्ट्स है तो सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं, एंड अगर दूसरे टेंसेस हैं तो आधा कहाँ है। अनदर मेन रूल रिलेटेड टू टेंस हमें मिलता है कि अगर 2 पास्ट के एक्शंस हैं तो आउट ऑफ 2 जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। इसके ऊपर अक्सर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं टिल नाउ, so you have to be super careful। okay, I was sleeping when he comes home या फिर when he has come home, तो I was sleeping आधा एक्शन पास्ट में है तो रिमेनिंग हाफ भी पास्ट में होगा, तो करेक्शन होगा I was sleeping when he came home। टेंस को बैलेंस करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। If you studied hard, you passed the exam। No, studied past है, वैसे ये एक if कंडीशन का सेंटेंस है तो वो हम थोड़ा बाद में भी देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे would पास आएगा। तो बैलेंस करना,
अगर 2 पास्ट के एक्शन है तो आउट ऑफ 2 पहला वाला पास्ट परफेक्ट में एंड सेकंड वाला सिंपल पास्ट में, एंड फैक्ट्स को हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे. दीज आर दी प्राइमरी थिंग्स दैट वी टेक केयर ऑफ जब भी हम टेंस से डील करते हैं. मूविंग ऑन, आर्टिकल्स. ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, बट दिस इज लाइक हेवी डोज फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट. आवर कोर्सेज, माय कोर्सेज आर अवेलेबल यूजिंग आर्टिकल ए एंड और द. तो अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो हम अ का यूज कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के पहले करते हैं, सिंगुलर्स के साथ में. अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट. तो जो साउंड आ रहा है यहाँ पे वो है य का, एज इफ मैं वाई से लिख रही हूँ. अगर 1 का मैं साउंड देखूं तो ऐसा लगता है कि W से कुछ लिखा जा रहा है ना. तो हियर साउंड मैटर्स, एंड सिंगुलर के साथ हम अ लगाएंगे अगर कॉन्सोनेंट का साउंड हो. लेकिन अगर वोवल का साउंड हो तो हम एन लगाएंगे, जैसे आर. ओके, आर जो है वो ऐसा लगता है मैं OUR बोल रही हूँ, NR लिखा जाता है. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, आप मुझे बताइएगा इसके आगे मैं क्या लिखूँ. ओके, इन केस यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग, मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ, सोच के बताओ इसके आगे अ लगेगा कि एन लगेगा. इसके आगे अ लगेगा. इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं होता है, ईयर होता है. ओके, इट्स लाइक ईयर साउंड, so it's always a year. द का यूज हम स्पेसिफिक चीजें, अनोखी चीजें, यूनिक चीजें और कुछ नामों के लिए करते हैं. जैसे सन, मून, अर्थ यूनिक है तो द आएगा. ताजमहल, लेट्स से टाइटैनिक है ना, कोलोसियम, ये सब यूनिक है तो द आएगा. जब आप द का यूज किन्हीं नामों के साथ, प्रॉपर नाउन्स के साथ करना चाहते हो, ओके, इन दैट केस प्रॉपर नाउन्स के साथ में कुछ बातों का ध्यान रखो. एनीथिंग विच इज लार्जर देन रिवर, river, ocean, sea, ठीक है. इनके नामों के साथ में इनफैक्ट लेक, लेक या लेक से बड़े द का आएगा. ओके, द नाइल रिवर, द अरेबियन सी. डेजर्ट के नाम के आगे आपको मिलेगा द थार डेजर्ट. किसी भी कंट्री का नाम है एंड यू हैव यूनियन, यूनाइटेड, kingdom or republic. If any of these names is part of the name of country तो आप उनके नाम के आगे द लगाओगे. So it is never the India, but अगर आप लिख रहे हो Republic of India तो आप definitely द लगाओगे. Okay, let's see some examples. I saw an European tourist. No, a European tourist क्योंकि साउंड यू का है, यूरोपियन, वाई का जो प्रोनाउंसिएशन. I bought an orange. Or the sound is of a vowel, तो यहाँ पे. Next we have rule number 4, which is pronoun antecedent agreement. Pronoun अपने respective noun के अनुसार चलना चाहिए. So it should match its noun जो कि antecedent होता है. तो throughout the sentence whatever noun का नंबर है, जेंडर है, उसके अनुसार आपका प्रोनाउन चलेगा. तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउंस लेंगे. whenever आपके पास में everyone, each वगैरह है तो उनके लिए भी सिंगुलर प्रोनाउंस लगेंगे. जेंडर अननोन है तो आप his और her लगाओगे, their नहीं बना दोगे. तो each of the students brought their book नहीं होगा, है ना. each को हम सिंगुलर मान के चल रहे हैं तो his book बोलो या her book बोलो. ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, करेक्शन में. ओके,
यूज एनी वन ऑफ दिस हिज बोलोगे तो भी चलेगा. इट इज समथिंग जो जेनेरिक तरीके से भी यूज कर सकते. सेकेंड एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान देंगे. द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इज करेक्ट. नाउ ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते, कलेक्शन के नाम होते हैं, दे वर्क बोथ द वेज. कभी कभी हम उन्हें सिंगुलर मान के चलते हैं, कभी कभी हम उन्हें प्लूरल मान के चलते हैं. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हमारे पास में सिंगुलर मान के चलते हैं, इन द केस वी सी कि ये जो नाउन है ऑल टुगेदर एज वन यूनिट काम कर रहा है, देन वी कंसीडर इट सिंगुलर. एंड इन दैट केस आप आगे जो भी प्रोनाउन लगाओगे वो सिंगुलर लगाओगे. बट इफ यू सी देर इज अ कलेक्टिव नाउन लाइक टीम हो गया, कमिटी, ज्यूरी, एनी कलेक्टिव, लेकिन उसका सेंस सेंटेंस में जो है वो ऐसा है कि वो सेपरेट सेपरेट चीजों की बात कर रहा है. इन दैट केस व्हाट यू आर गोना डू इज यू आर गोना ट्रीट इट प्लूरल. तो आपको ये नॉलेज भी, ये समझ भी अपने आप में डेवलप करनी है. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पैरेललिज्म. आप सेंटेंसेस में एक बैलेंस लेके चलते हो. द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दैट वी यूज इन अ सेंटेंस, नाउ दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑल्सो. सो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको आप बैलेंस रखोगे. ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है वो आप सिमिलर या सेम रखोगे. So use the same tense and same format, especially when there is a list. कोई कंपैरिजन है, कोई पेयर वाले कंजंक्शंस हैं, जैसे फ्रॉम टू, ये कंजंक्शन नहीं है पर एक पेयर है. इफ यू हैव नॉट ओनली बट ऑल्सो, यू हैव बिटवीन, बिटवीन के साथ चलता है एंड. ओके, so that's the way you should keep it. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. She likes dancing to swim and reading. Dancing, reading ing फॉर्म में है जो कि gerund है. तो बीच में ये अलग से क्यों बैठा हुआ है, इसको भी तो स्विमिंग करना पड़ेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. He wants to learn English, play football and to swim. अभी ये टू रिपीट करने की नीड नहीं है. To learn, to play, to swim. तो एक स्ट्रक्चर होता है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, क्योंकि हर सेंटेंस दूसरे से अलग आपको मिलेगा. तो इस तरीके से यू आर सपोज टू डू इट. सिक्स्थ पर आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. अगेन आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट. तो एक्टिव इज व्हेन आप क्लैरिटी रखना चाहते हो, सेंटेंस शॉर्ट रखना, कंसाइज रखना चाहते हो, और सेंटेंस में एक्शन करने वाला कौन है, जो कि डूअर हम उसे बोलते हैं. ठीक है, डूअर है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. वेराज अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई काम किसने किया है ना, जैसे a bomb was planted. Now you don't know who planted it, पर आपको ये पता है कि एक बॉम्ब को कहीं प्लांट करा गया. ओके, तो पैसिव का यूज होता है. तो पैसिव में whatever verb is, उसका असर सब्जेक्ट पे होता है. द एक्शन इज ऑन द सब्जेक्ट. नाउ दिस हैपेंस इन पैसिव वॉइस. ओके, John ate the cake. We know doer कौन है, खाने का काम कौन कर रहा है, John. So it is an active. The cake was eaten by John. Now this is passive. Eat करने का काम जिस चीज पर हो रहा है वो है केक. Similarly, the teacher gave the students homework. Who is the action doer? ये give करने का काम कौन कर रहा है, teacher. That means sentence active में ही सही है. The students were given homework.
अभी ये गिव करने का काम इनके ऊपर हो रहा है स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा। कई बार क्या होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो ठीक है, लेट्स से इट इज लाइक द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स वर गिविंग इंग्लिश क्लास, स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल वर्ब है, वर्ब के साथ गिविंग कंटिन्यूअस सेंस बिल्कुल सही है, बट टीचर्स होते हैं जो क्लास को देते हैं एंड स्टूडेंट्स दे टेक द क्लास, ओके। तो यहाँ पे मीनिंग इज टोटली रॉन्ग। स्टूडेंट्स कोई भी क्लास नहीं पढ़ा सकते, गिव क्लास मीन्स टू टीच, so that's the reason दो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज फाइन, सेंटेंस आपका पैसिव में होना था क्योंकि गिव का काम इनके ऊपर हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे करेक्शन होता है, द स्टूडेंट्स वर बीइंग गिवन इंग्लिश क्लास, modifier. Okay, now what is modifier? That means a word like adjective, adverb, एक sentence का टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो any of such that is explaining किसी और word को, तो उसको सबसे पास में रखना चाहिए हमें, ओके। modifies the wrong word। अब ये इतना आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि कौन से टाइप का मॉडिफायर है, एंड देर आर टू वेज जिसमें गलती मिलती है। एक तो कहीं और रख दिया तो किसी और वर्ड को समझाने लग गया, एंड द अदर वर्ड इज अदर टाइप ऑफ मॉडिफायर इज कि देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल, ओके। वॉकिंग टू द पार्क द फ्लावर्स वर ब्यूटिफुल, वॉकिंग टू द पार्क, ये वॉकिंग मॉडिफायर है, पर ये किसको समझा रहा है? फ्लावर्स को। क्या फ्लावर्स वॉक कर रहे थे? सेंटेंस पूरा गलत है। वॉकिंग टू द पार्क आई सॉ ब्यूटिफुल फ्लावर, तो हु इज वॉकिंग, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इतना फ्रेज आई को मॉडिफाई कर रहा है, ओके। so this phrase is modifying I in a correct manner, I can walk। यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से जाएगा, she almost drove her kids to school every day, she drove her kids to school almost every day, है ना। why? she almost drove her kids to school every day, almost मतलब बीच में ड्राइव करने का इधर उधर हो जा रहा था। ऑलमोस्ट एवरी डे मीन्स मे बी आउट ऑफ 30 डेज 25 डेज 2 दिन नहीं करती होगी, तो हियर आपका मॉडिफायर था ऑलमोस्ट, ओके, विच इज एडवर्ब। एडवर्ब्स को सही जगह पर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। तो एक अच्छी नॉलेज रखो मॉडिफायर होते कैसे हैं और लगते कहाँ हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन। कैसे किस प्रपोजिशन का यूज करें, प्रपोजिशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रपोजिशन, दो वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप क्या है। एक कॉमन एरर है, 2-3 कॉमन एरर है, वो आपको समझने होंगे। शी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर, क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हुई है, ऐसे हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो मैरिड अपने साथ टू लेता है। इनफैक्ट अगर आप एंगेज वर्ड का यूज कर रहे हो तो वो भी अपने साथ टू लेगा। ये कॉमन एरर है, वी हैव सीन इन एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। बीइंग गुड एट और बैड एट समथिंग, इन नहीं होता, ओके। आई एम गुड एट इंग्लिश, ही इज बैड एट हिंदी। तो जो भी चीज में अच्छे हो या बुरे हो एट लगाकर बताओगे, इन लगाकर नहीं बताओगे। अगेन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं हम, इन लगा देते हैं। Some things in English are specific, that's why I read a lot of English. Along with understanding, write grammar behind whatever you are reading. Afraid अपने साथ of लेता है, okay, and there are more fixed prepositions, तो आपकी रीडिंग जितनी स्ट्रांग होगी prepositions उतने
स्ट्रॉन्ग होते। वाओ, now this is again a whole chapter. जब मैं इसे अपने फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाती हूँ इट्स लाइक अ होल 1 hour सेशन, बट अभी मैं आपको बहुत क्विकली बताऊंगी। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बाय द वे, एंड इफ यू आर एबल टू यूज इन योर एसेज एटसेट्रा इट इज ग्रेट। इट शोज दैट आप एक अच्छे लेवल की इंग्लिश लिख रहे हैं। कंडीशंस एज द नेम, अगर ऐसा है तो वैसा है। ओके, सो फर्स्ट इंडिकेटर की एक सेंटेंस कंडीशनल है। आप इफ से सेंटेंस शुरू होता हुआ पाते हो। ओके, इफ इट इज अ जनरल ट्रूथ दैट इज अ जीरो कंडीशनल। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस लगेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट रिजल्ट पार्ट भी प्रेजेंट टेंस में जाएगा, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ यू हीट आइज इट मेल्ट्स, एक फैक्ट है ना, इसको चेंज तो नहीं कर सकते। ओके, सो सो दोनों ही पार्ट्स इफ के साथ वाले सिंपल प्रेजेंट में है। टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल इज अ पॉसिबल फ्यूचर, समथिंग जो है आज करोगे तो कल पॉसिबल है। इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। इफ यू पे अटेंशन, तो इफ के साथ आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हो, और मेन रिजल्ट जो हो सकता है उसमें आप फ्यूचर टेंस का यूज कर। इफ यू कवर इंग्लिश ग्रामर टुडे, कमा, यू विल फेस नो प्रॉब्लम इन एग्जाम, इस तरीके से। सेकंड कंडीशनल होता है अनरियल प्रेजेंट, अभी भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट की कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। इफ आई वर रिच, यहां पे हमको लगाना पड़ता है वर, सिंपल पास्ट टेंस। एंड आगे जो सेंटेंस होता है इफ के अलग वाला, उसमें आप वुड कुड लगा सकते हो, एंड देन आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। अगर आप ही लगाओगे तो भी वर लगाओगे, अगर आप शी लगाओगे जिनके साथ यूजुअली वर्स लगता है तो भी वर लगाओगे, बिकॉज ये एक इफ की कंडीशन है। दैट इज हाउ उसका स्ट्रक्चर काम करता है। So this is by default. If he were my brother, अभी ये प्रेजेंट है, आज के टाइम की बात कर रही हूँ, पर पॉसिबल नहीं है ना कि कोई रैंडम मेरा भाई बन जाएगा। तो इफ ही वर, नॉट ही वॉज, इफ ही वर माई ब्रदर, I would have asked, I would ask him, I would ask him to do all my chores. तो मैं अपना सारा काम उसी से करवाती। तो यहाँ पर एक अनरियल प्रेजेंट है। अभी थर्ड कंडीशन में क्या है, समथिंग दैट इज अनरियल पास्ट। मतलब अगर पास्ट में हाइपोथेटिकली आपने वो करा होता तो पास्ट में कुछ और ही बात होती। तो इट्स टोटली अबाउट पास्ट एंड द सपोजिशन जो कि पास्ट का है। तो इसमें क्या होता है, इफ के साथ आप लगाते हो पास्ट परफेक्ट, कंडीशन इफ से दिखाओगे आप तो पास्ट परफेक्ट लगाओगे, और जो इमेजिनरी रिजल्ट है उसमें आप लगाओगे वुड या कुड। ओके, एंड हैव लगाओगे एंड वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म लिखो। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड इन स्कूल, you would have not required to repeat 8th standard. If you had studied, you would have passed. अभी कुछ नहीं कर सकते। पास्ट में अगर ये कर लिया होता था तो कुछ हो जाता था। अब एक एक्सेप्शन है, समटाइम्स इन दिस थर्ड कंडीशनल सेम सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, had you studied। ओके, तो इफ को हटा के had पहले लिखेंगे, then subject and then main verb. This is called inversion. Okay? Once again, ये जो rules है काफी क्रिस्प तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। Considering you know them, you simply need a revision or a recap or a reminder of the important rules. लेकिन अगर आपका ग्रामर नॉलेज बिल्कुल जीरो है,
प्लीज पहले फाउंडेशन कोर्स करो, समझो चीजों को. And the last important one in this session today is commonly confused word. There are some tricky word pairs. उनके डिफरेंस को आपको समझना है. These are a few of them. Okay, there are more, but mainly ये है. So your versus you are. Okay, your is possessive. Your book, your name. You, ये इसको भी your बोलते हैं, but it is with an apostrophe, which is expansion of you are. Okay. सिमिलरली ये सेकेंड वाला पॉइंट मैंने बहुत सारे ऐसे चेक करे हैं, एंड आई कैन टेल यू सो मेनी टाइम्स आई हैव फाउंड कि स्टूडेंट्स ने यहाँ बहुत मिस. तो ये जो इट्स है ये होता है पॉजेसिव बताने के लिए. जैसे डॉग वैग्ड इट्स टेल, उसकी टेल हिला रहा है. लेकिन अगर आप इट लिखते हो अपॉस्ट्रोफी के साथ तो ये होता है इट इज या फिर इट हैज, है ना. उनको शॉर्ट में लिखने के लिए वी यूज दिस. दैट मीन्स इट इज रेनिंग. ओके, तो इनका मीनिंग का डिफरेंस, बोलने का तरीका भले इट्स है बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इसी तरीके से दे आर एंड देयर. ओके, इन्हें हम देयर बोलते हैं पर ये शॉर्ट फॉर्म है दे आर का, और ये देयर होता है possessive, their name, their class, their company. कुछ वर्ड्स में फंसाया जाता है एग्जाम में, जैसे अफेक्ट विच इज अ वर्ब. इफेक्ट इट्स अ नाउन एंड अ वर्ब, लेकिन वर्ब में मीनिंग इसका डिफरेंट हो जाता है. द वेदर अफेक्ट्स माई मूड, द इफेक्ट वॉज सरप्राइजिंग. सो यहाँ पे वो नाउन के समान यूज हुआ है ना. अगर मैं इफेक्ट को एज अ वर्ब बोलना, the new rule was effected by the company. तो लागू करने के लिए भी इफेक्ट का यूज होता है बट एज अ वर्ब. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थोड़ा सा ग्रास्प रहेगा तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. उसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करा जाता है देन वर्सेस देन में. एक में ए है एक में ई. ही इज टॉलर देन मी, कंपैरिजन में हमेशा ये वाला देन आएगा और रादर के साथ ये वाला देन आएगा. ओके, अगर आपको फिर बताना है टाइम वाइज यू आर टॉकिंग, ओके, देन THEN देन इज सपोज टू बी. ये कुछ 10 रूल्स थे. दीज आर द टॉप 10 रूल्स फॉर यू एंड यू मस्ट नो देम वेल. अगेन बिल्कुल जीरो नॉलेज है ग्रामर का, तो डोंट लेट इट बी लाइक दैट. प्लीज टेक आउट सम टाइम और फिनिश करो अपना फाउंडेशन को. These are 5 questions for you to practice. आप पांचों का आंसर एक साथ मुझे दे दो फटाफट यहाँ पे. So it is just a small practice after इतने जो रूल्स हमने किए. I'll give you 2-3 minutes for these questions, more than enough time. Okay. Each of the players, each of या every के बाद आप कुछ भी लगाते हो तो प्लूरल, ऑफ के साथ प्लूरल, और अगर ऑफ नहीं है तो सिंगुलर नाउन लगेगा, पर इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है तो हैज है.
शी प्रिफर्स डैश ओवर सिंगिंग। ing फॉर्म है तो शी प्रिफर्स टू डांस ओवर सिंगिंग नहीं आएगा, सेकेंड वाले में डांसिंग हम बोलेंगे। ओके, थर्ड वन, इफ I were you, I would not do that. Now this is a supposition. प्रेजेंट का ही है, पास्ट का नहीं है, तो वर आएगा। द टीचर गेव द बुक्स टू जॉन एंड मी, क्योंकि टू के बाद जो सही या किसी भी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन यूज करते हैं तो हम उसका केस ऑब्जेक्टिव रखते हैं। ही हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का भी कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन दिया जाता है। So to end the class, I'll simply explain you. Since starting point of time के लिए यूज होगा। आपको कभी भी बताना है कब से शुरू हुआ। He has been waiting since Monday, since morning, since 2015. For का यूज आप करोगे टाइम पीरियड बताने के लिए। He has been waiting for 20 minutes, for 20 years, for 20 days. तो आपको टाइम पीरियड बताना है तो फॉर बोलोगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो आप सिंस बोलोगे। फॉर और सिंस अगर आपके सेंटेंस में आया है, ओके, एंड देन देयर इज एनी टाइप ऑफ टाइम, दैट मीन्स आपका सेंटेंस फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। If not perfect continuous, it has to be in perfect tense. अभी वो present, past, future कुछ भी हो सकता है, पर perfect continuous mostly होगा। Some verbs जैसे like, love, hear, see, इनको हम ing form में नहीं लिखते हैं, so they are written, they are stative verbs, उनको फिर हम perfect tense में लिख सकते हैं। Okay, for example, I have loved. I have loved this book. I have been loving नहीं बोलूंगी मैं। I have loved this book since my childhood. तो वहां पे I have been loving नहीं आएगा क्योंकि love को आप कंटिन्यूस में नहीं लिखते हो। I am loving you नहीं, I love you बोला जाता है। तो उसी तरीके से इनका यूज होता है। Get again clarity on how we use. Okay. So guys, that was it for this session. I hope आपने कुछ सीखा हो। Whatever I have taught in this chapter, in this session today, please try to see how the rules are acting in a piece of article. कभी भी time मिले, so take out 5 minutes, go through an article and check कि आपको ये points यहाँ बराबर मिल रहे हैं या नहीं, है ना? तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि थ्योरी सीख ली, अब लगते अलग अलग तरीके से हैं, दे आर यूज्ड एंड अप्लाइड इन वेरियस मैनर्स। सेंटेंस की लेंथ पर डिपेंड करता है, यू आर एबल टू क्रैक इट और नॉट। ओके, समटाइम्स द लेंथी सेंटेंस कैन गिव यू अ टफ टाइम, डू नॉट वरी, वी विल लर्न। हम उसे हैंडल करना, चेक करना सीखेंगे, and likewise we will move ahead in our preparation. Okay, so yes, thank you so much for attending the session. Make sure to like and share, subscribe to our channel if you are new. I'll see you later.